एक लड़का से पूछे थे प्रैक्टिकल में, वाइवा में, बाबू एसिड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एसिड? तो सर जो सीसिया में रखा हुआ है लेबोरेटरी में वो सब एसिड है। अब बोल बेस क्या होता है? वो जमीन में जो रखा रहता है ना डिब्बा में, वो बेस हुआ। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहेगा यार, जिसको हम लोग घटाघट पीते हैं। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही कारण है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। नहीं अगर उसमें रहता इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड तो वह गैसीय अवस्था में रहता, और जब गैसीय अवस्था में रहता है तो पानी हम लोग पीने के बजाय सांस लेते पानी का, तो फिर जीवन संभव नहीं था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षा। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं केमिस्ट्री क्लास, जिसे कोलैबोरेट किए हैं वेल नोन केमिस्ट्री एक्सपर्ट, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड केएलएस कॉलेज नवादा के डॉक्टर एमजेड शहजादा सर। उन्होंने स्टूडेंट वेलफेयर के लिए अब एक केमिस्ट्री क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लोग उनका लेक्चर वीडियो का लाभ उठा सके। हम इस चैनल पे और कई सारे सब्जेक्ट्स का कोलैबोरेशन वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप सब हर्षोल्लास के साथ वीडियो को लाइक शेयर करके सर का भव्य स्वागत करें। सर प्लीज वेलकम। Yesterday we have discussed about phenol, introduction of phenol, nomenclature of phenol and preparation of phenol. Yesterday we have discussed about the two methods for the preparation of phenol, from benzene diazonium chloride and from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. Today another method and useful method for the preparation of phenol, and that is from Grignard reagent. From Grignard reagent. Preparation of phenol from Grignard reagent. What do you mean by Grignard reagent? Grignard reagent is RMGX, and R stand for alkyl group or aryl group. RMGX. RMGX. Magnesium halide. X stand for halide. R stand for alkyl group or aryl group. Either alkyl group or aryl group. It is Grignard reagent. The process is that when bubbled off oxygen passed through Grignard reagent in presence of dry ether, first it gives additive product, which on acidic hydrolysis with water gives phenol. Now let's see the reaction. MgX phenyl magnesium halide. It is a Grignard reagent. Phenyl magnesium halide. On treatment with oxygen in the form of bubble air, in presence of dry ether, it gives additive product. This oxygen is addition with aryl magnesium halide. Phenoxy. First it gives phenoxy magnesium halide. Two atom of oxygen, one atom of oxygen. For balance, we just do it as half, and it gives phenoxy magnesium halide. Now it on acid hydrolysis with water H2O in presence of dilute acid, and the process is known as hydrolysis, gives phenol. This OH
फिनॉल लिखते चलिए प्लस Mg और Mg के साथ क्या बच जाएगा OH, O ये वाला O और एक HA, OH and X. This is phenol and this is hydroxy magnesium halide. Hydroxy magnesium halide. Okay, these are the three methods for general preparation of phenol. From benzene diazonium chloride, which we studied, and benzene sulfonic acid. It is also studied, and today we will discuss about we have discussed about phenyl magnesium halide. Now, on large scale, phenol is prepared mainly by two methods. Industrial, and it is known as industrial preparation of phenol. Industrial preparation of phenol. On large scale, phenol is manufactured. यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किए हैं मैन्युफैक्चर्ड, बड़े पैमाने पर निर्माण, मैन्युफैक्चर्ड बाय टू methods, and these two methods are first Gauss method and second one is from क्यूमीन. ये दो मेथड है जिससे हम लोग व्यापारिक मात्रा में बड़े पैमाने पर फिनॉल का उत्पादन करते हैं. गाउस मेथड में क्या है भाई, लिख लीजिए. इसको मिटाएं, ऊपर वाला मिटाएं, लिखिए गाउस मेथड. पहला गाउस मेथड क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं. स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहता है, क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन को जब हम NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 6 to 8% solution of sodium hydroxide at 573 Kelvin to 623 Kelvin, यानी कि कह लो डिग्री सेल्सियस में 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक हाई प्रेशर पर 300 ATM प्रेशर पर जब गर्म करते हैं तो पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनता है. सोडियम फेनॉक्साइड, उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमको फिनॉल मिल जाएगा. यही प्रोसेस है. इसके लिए एक बड़ा सा प्लांट बैठता है, चैम्बर रहता है, क्या है कि बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी भी ऐसा नहीं तैयार करते हैं. लिख लीजिए. इन दिस मेथड chlorobenzene is treated with 6 to 8% solution of NaOH at 623 Kelvin K, 623 K and 300 ATM pressure. First it gives sodium phenoxide
sodium phenoxide, which followed by acidification, gives phenol. Now let's see the reaction. Chlorobenzene, the starting material is chlorobenzene. On retreatment with NaOH, sodium hydroxide, caustic soda solution. 6 to 8%. 6 to 8% caustic soda solution. ठीक ना? 6 to 8% caustic soda solution. The condition is 623 Kelvin and 300 atm pressure. What it gives? HCl minus, क्या ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं, chlorine atom is replaced by sodium or oxygen. This is sodium phenoxide and HCl. इसी में HCl बन जाता है. This is sodium phenoxide, या इसको हम लोग सोडियम फेनेट भी कहते हैं. सोडियम फेनेट यह भी कहते हैं. और यही जो HCl बना, यही HCl एसिड है. इसी के उपस्थिति में, इसी के प्रेजेंस में ऑटोमेटिकली सेल्फ एसिडिफिकेशन हो जाएगा. एसिडिफिकेशन हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा? OH plus NaCl, and it gives phenol. Dawes process. This is Dawes process. कोई बड़ा चीज नहीं है. एग्जामिनेशन में पूछता है डिटेल में, तो लैंग्वेज जब आपको लिखना है, और लैंग्वेज के बाद रिएक्शन लिखना है, इक्वेशन लिखना है, यही तो है. 5 नंबर का आएगा ये, 5 नंबर का. दूसरा, फ्रॉम क्यूमीन. कल हम बताए थे कि क्यूमीन के बारे में पढ़ कर के आइएगा. जरा सा बताइए तो क्या है क्यूमीन, आप बताइए तो. यस, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन. This is benzene. आइसो का मतलब कार्बन. प्रोपाइल में कई कार्बन रहता है? 3. पहला नहीं, दूसरा कार्बन पर बेंजीन रिंग लगा रहेगा. दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड इट इज नोन एज क्यूमीन. नोट कीजिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज known as क्यूमीन. आगे लिखिए. When bubble of oxygen passed through cumin, first it gives additive product which on acidic hydrolysis gives phenol. देखिए, CH3 C
H CH3, दिस इज प्रोपाइल। अगर एक फिनाइल यहां पर रहता, मान लो कि यहां पर अगर जोड़ते पहला कार्बन पर, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइल बेंजीन, कॉमन नेम प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन पहला पर नहीं होकर के दूसरा पर है, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। 2 फिनाइल IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, बताओ? यस, 2 फिनाइल प्रोपेन, इसी को हम लोग क्यूमिन कहते हैं। और ये 2 प्रोपाइल फिनॉल IUPAC नेम हुआ, IUPAC नेम, इट्स कॉमन नेम या केमिकल नेम दोनों अलग अलग चीज हो जाता है। आइसो प्रोपाइल बेंजीन। आप बाजार में जाइएगा, यूरिया मांगिएगा, मिल जाएगा यूरिया। अभी तो समय आ गया है खेती के लिए, उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में बहुत कॉमन है, उसका इस्तेमाल होता है, सब जानता है यूरिया। लेकिन वो दैट इज द केमिकल नेम, कॉमन नेम। और उसको अगर IUPAC नेम से मांगिएगा तो सब आपका मुंह ताकेगा। 1,1-डाई एमिनो मिथानोन। अब बोलेगा ये क्या है, बाजार में जाइएगा, DDT के पाउडर मांगिएगा, छिड़काव के लिए कीटनाशक होता है, मिल जाएगा। लेकिन अब उसका आप IUPAC नेम बोलिएगा, क्या बोलिएगा? पैरा डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, नहीं हो कोई भी चीज। अब पूछिए कि इसकी आवश्यकता क्या है ऐसा नाम? क्योंकि एक नाम से जाना जाता है पूरे दुनिया में। अब हम लोग चावल खाते हैं, अब हम लोग हिंदी में चावल बोलेंगे, बांग्ला में पता नहीं कुछ और बोलता होगा, मलयालम में कुछ और बोलेगा, अंग्रेजी में कुछ और बोलेगा, पर्शियन में कुछ और बोलेगा, दुनिया के अलग अलग भाषा में। लेकिन उसका अगर बायोलॉजिकल नेम पूछिएगा एक होगा पूरी दुनिया। ओराइजा सटिवा, मनुष्य, आदमी, इंसान, मैन, इतना तो हम जानते हैं, पता नहीं आउट ऑफ लैंग्वेज में क्या कहेगा। लेकिन अगर बायोलॉजिकल नेम पूछिएगा तो होमो सैपियंस, एक इसके लिए जरूरत पड़ता है। नॉमेनक्लेचर का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। बहरहाल तो ये क्या हो गया, 2 फिनाइल प्रोपेन, when bubble of oxygen pass through it, एडिशन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3। फिर यहां भी CH3 जैसे था वैसे ही, और यहां पर 2 ऑक्सीजन लग जाएगा। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, जुड़ गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, इफ्स OH, यहां से OH चला जाएगा इसमें फिनॉल। अब बचा क्या? बचेगा क्या? एसीटोन, CH3 CO, एक O यहां वाला, या यहां का तो OH यहां आ गया, ये वाला हो CO, और H तो इसी पे आ गया, CH3। दिस इज फिनॉल एंड दिस इज एसीटोन। क्यूमिन से दिस इज द, और दिस इज ऑल्सो कॉमर्शियल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो भी कह लीजिए। तो हम लोग डिफरेंट मेथड पढ़े क्या चीज के लिए भाई? फॉर द प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल। एंड प्रॉपर्टीज में आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए इसको हम लिखाएंगे नहीं, ये सिर्फ है फिजिकल का। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? ये देखने में मतलब कि इसकी भौतिक अवस्था क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, या किसमें घुलनशील होता है, इसका गंध क्या है, रंग क्या है, इसका यही सब, और कोई खास बात इसमें होता नहीं है। लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, प्योर फिनॉल इज
Pure phenol is either colorless liquid or solid. कलरलेस होता है, शुद्ध, बिल्कुल पानी की तरह, लेकिन यह हल्का क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इसको हम खुला छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। इसी पे लिखिएगा, बट इट टर्न्स reddish brown on exposure to air. दूसरा पॉइंट, it has इसका एक विशेष गंध होता है। It has characteristic smell known as phenolic smell. Next point, phenol is almost insoluble in water. It is soluble in alcohol and ether. अगला पॉइंट, the melting point and boiling point. The melting point and boiling point of phenol are comparatively higher than other corresponding एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या समझें? फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अदर हाइड्रोकार्बन करस्पॉन्डिंग इतना ही मॉलिक्यूलर भार वाला, मतलब इससे मिलता जुलता, ये नहीं कि अब एकदम अल्काइल ग्रुप हो उसमें एक फिनाइल जोड़ देंगे तो नहीं, इससे मिलता जुलता जो अदर हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके तुलना में इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। क्यों? दिस इज ड्यू टू इसी में लिख लीजिएगा, दिस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं काफी पहले, जब केमिकल बॉन्ड का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़े थे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी कंपाउंड में पाया जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ड्रास्टिकली काफी अधिक हो जाता है, काफी हाई हो जाता है। यही कारण है वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही कारण है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। नहीं अगर उसमें रहता इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड तो वह गैसीय अवस्था में रहता, और जब गैसीय अवस्था में रहता तो पानी हम लोग पीने के बजाय सांस लेते पानी का, तो फिर जीवन संभव नहीं था। अब देखिए कैसे, वाटर H2O, ऑक्सीजन फैमिली में ही सल्फर आता है H2S। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव है। सुनिए समझिए इसको, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है। नहीं होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट
-60 डिग्री सेल्सियस। शून्य से 60 डिग्री नीचे, 59.7 है, शून्य से लगभग 60 डिग्री नीचे। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो 20, 25, 30, 35 डिग्री रहता है, क्या रहेगा इसका? ऐसी अवस्था में रहेगा कि नहीं? और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहेगा ये, जिसको हम लोग गटागट पीते हैं? हम ही लोग नहीं पीते हैं, सारे जीव। बिना जल का जीवन संभव नहीं। अब पूछिए क्यों इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें नहीं है? क्यों? दोनों में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्यों है, इफेक्टिव इसमें नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन ही है कि when hydrogen atom linked with या attached with highly electronegative atom, हाइड्रोजन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में से 3 आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन जब सिर्फ इन तीनों एलिमेंट के साथ जुड़ा रहेगा, तब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड, या कह लीजिएगा कि ओरिएंटेड टुवर्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसके फलस्वरूप these elements, these atoms acquires partially negative charge and hydrogen acquires partially positive charge. In H2O, hydrogen linked with oxygen, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव। ये हम क्या दिखा रहे हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों यहां आ गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार से यहां भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बीच में क्या है? ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन आइटम एंड इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? पार्शियली इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हेन नेगेटिव एंड ऑफ दिस मॉलिक्यूल ओरिएंटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, अब दूसरा H2, इसमें भी ऐसे, इसको हम ऐसे ही दर्शा रहे हैं, समझो। फिर H2O, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, फिर अनंत, इनफाइनाइट। तो अब यहां पर इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव। तो एक पार्शियल, कमजोर, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड। A weak force of attraction is developed between the negatively charged end of one molecule and positively charged of another molecule, and this weak force of attraction is known as hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, तब वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा। यहाँ पर न तो नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, सल्फर है, नॉट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव नहीं होगा। अब हम फिनॉल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। फिनॉल, दिस इज फिनॉल, OH। अब यहां पर O है, यहां पर H है, तो यहां पर पार्शियली निगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा फिनॉल, H, फिर O, तो यहां पर क्या बन रहा है? पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो फिनॉल में O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर रहा है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण फिनॉल का हमने लिखाया है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अधिक हो जाता है अदर एरोमेटिक, करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में। ओके, ठीक है।
चलिए अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आइए। भाई फिनॉल एसिडिक होगा कि बेसिक होगा नेचर में? एगो लड़का बोलेगा कि एसिडिक और दूसरा क्या बोलेगा बेसिक। दोनों में से कोई ना कोई सही हो जाएगा। क्यों एसिडिक होगा और अगर बेसिक होता है तो क्यों बेसिक होगा? कारण के साथ बताइए। OH एक लड़का से पूछे थे प्रैक्टिकल में वाइवा में कि सर बाबू एसिड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? तो सर जो सीसिया में रखा हुआ है लेबोरेटरी में वो सब एसिड है। हम बोले बेस क्या होता है? वो जमीन में जो रखा रहता है ना डिब्बा में वो बेस हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? Yes, the substance which releases, which produces H plus ion, जो H plus ion आसानी से देगा, readily, easily liberate करेगा, furnish करेगा, that is known as acid. Phenol, phenol, phenol. This is phenol. अब यह H plus ion को आसानी से बना लेगा। Phenoxide ion and releases H plus ion. Phenoxide या फेनेट आयन जो कहते हैं इसको, फेनॉक्साइड आयन या इसी को कहते हैं फेनेट आयन भी। अब ये क्यों देगा H प्लस आयन इतना आसानी से? इसका मतलब O और H बॉन्ड कमजोर होगा तभी ना टूटेगा। ये कमजोर क्यों होगा? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसके पहले ये देखिए ROH अल्कोहल, यह भी अल्कोहल के श्रेणी में आएगा। इसमें R की जगह पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है। R की जगह पर बेंजीन अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल। फिर दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, R की जगह पर C6H5 दिस इज फिनाइल ग्रुप OH। या ऐसे आप लिखो भाई जैसे लिखते आ रहे हो। दिस इज इथाइल अल्कोहल एंड दिस इज फिनॉल। अब पूछेगा यहां भी तो हो सकता है O और H टूट सकता है? नहीं, इट इज नॉट एसिडिक देन मोर एसिडिक देन इन कंपेरिजन टू फिनॉल। ऐसा नहीं होता है। यहां पर H नहीं टूटेगा, मतलब कि रिलीज उतना आसानी से नहीं होगा इन कंपेरिजन टू फिनॉल। ऐसा क्यों? ये बेसिक चीज है। इस कंसेप्ट को अगर क्लियर रखिएगा तो आपको एसिड और बेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन सैकड़ों आ सकता है केमिस्ट्री में, चाहे वो IIT का क्वेश्चन हो, चाहे JEE का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सैकड़ों आ सकता है इस पर। तो इसका आंसर क्या होगा? पढ़ चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। Due to resonance effect, phenol easily releases या furnishes H plus ion. यह resonance effect क्या हुआ? Resonance effect is effective in conjugate molecule. Conjugate molecule किसको कहेंगे? That molecule in which single bond or double bond is in alternative order. कंजुगेट मॉलिक्यूल के उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है, हस्तांतरण होता है, हटता है। उसी के कारण उसी के कारण रेजोनेंस उत्पन्न होता है। अब देखिए यहां पर लिखिए तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल लिखिए। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर।
It is more acidic than alcohol and water. It is more acidic than alcohol and water. This is due to resonance effect produces in phenol. बस इसका आंसर हो गया। अब इसको जरा समझने के लिए हमने अभी आपको बताया कि रेजोनेंस इफेक्ट को जरा समझिए। फिनॉल का स्ट्रक्चर देखिए, OH, O किसके साथ जुड़ा हुआ है? H के साथ, एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया OH। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, तो 2, 4 और एक इधर और एक इधर। एक इधर किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। इसको C नहीं लिखते हैं, ऐसे कार्बन के साथ। और ये बेंजीन रिंग, कार्बन किसका है? बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज फिनॉल। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच रहा है बॉन्ड बनाने के बाद भी। और किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन रिंग इज ए कंजुगेट मॉलिक्यूल। कंजुगेट मतलब समझ रहे ना, इसको कहेंगे अभी अभी बताए हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में है। अब यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ये हो सकता है और होता भी है, लेकिन अगर दूसरे ढंग से लिखें, मतलब कि एक ही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, एक टर्म आता है, उसमें क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कि एक ही मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को सिर्फ एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते, कई एक स्ट्रक्चर से डिफाइन करते हैं, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ आएगा, और यह पाई इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन यह यहाँ चला जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 2, एक ये, और यहाँ पर ये लोन पेयर आया, ये सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। यह भी फिनॉल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे वो भी सही है। फिर दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज करेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लोन पेयर, OH, डबल बॉन्ड। अब यहां पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आ जाएगा। थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का यह भी स्ट्रक्चर हो सकता है, फिनॉल का यह भी स्ट्रक्चर हो सकता है, फिनॉल का यह भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक ना? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर यहां मूव कर सकता है, बोलेगा कि इसको भी तो हो सकता है, जब डीलोकलाइज्ड हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसका, फिर यहां पर ये आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ऐसा ऐसा, और ये लोन पेयर यहां पर आएगा, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन बना देगा। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आएगा, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ वन ऑफ फिनॉल। अब फिर अगला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसका? देखिए ये लोन पेयर जो है यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा। तो फिर अपने पांचवा स्ट्रक्चर जो है अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। यहाँ पर से चला जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर फिर लोन पेयर, ऐसा ऐसा। अब देखिए कैसे रेजोनेंस इफेक्ट के कारण यह
पांचवा स्ट्रक्चर। All these structure is known as resonance hybrid structure of phenol, and the properties of phenol can be described all the structure based upon all the structure. अब यहाँ पर इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखने से पता चलता है क्या कि स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 में ऑक्सीजन और कार्बन किसका, बेंजीन वाला कार्बन में पार्शियली, कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड मजबूत है, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक है, मजबूत है, तो O और H बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक हो जाएगा, तो यह आसानी से H+ आयन को रिलीज करेगा, तो इट इज एसिडिक इन नेचर। अगर हम अल्काइल ग्रुप में देखते हैं CH3, जैसे यह इथाइल अल्कोहल CH3, CH2 और OH, बोलिएगा ये इसमें भी तो OH है सर, लेकिन यहां जो O जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, यहां पर कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेट मॉलिक्यूल नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेटिव बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहां पर यह इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। तो इथाइल अल्कोहल एसिडिक नेचर का उतना नहीं होगा इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।